اب تک ہم جان چکے ہیں کہ ذوالقرنین فارس کے مشہور زمانہ بادشاہ تھے، جن کو تاریخی حوالوں میں کورس اور سائرس دا گریٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ قرآن میں جن دو مقامات کا ذکر کیا گیا جہاں ذوالقرنین گئے اور ان کو فتح کیا، در حقیقت موجودہ دور کے آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقے ہیں، جیسا کہ تاریخی حوالوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اب ہم بڑھیں گے ذوالقرنین کے سفر کی تیسری کڑی کی جانب، جہاں ذوالقرنین گئے اور جہاں انہوں نے یاجوج ماجوج کا محاسبہ کیا، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 92۔ وہ پھر ایک اور راستے پر چلا، جیسا کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ آیت نمبر 92 جیسی آیات ذوالقرنین کے سفر کو بیان کرتے ہوئے 3 بار دہرائی گئی ہیں، اور یہ آیات سمت اور علاقہ تبدیل ہونے کی نشاندہی کر رہی ہیں، اور اس بار بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن پہلی 2 بار اس آیت کے بعد قرآن میں سمت کا واضح اشارہ دیا گیا، جیسے کہ آرمینیا کی جانب سفر کا اشارہ سورج کے غروب ہونے سے دیا گیا، اور اس مقام یعنی جھیل سیوان کا ذکر جہاں ذوالقرنین پہنچے، اس کا بھی اشارہ واضح طور پر موجود ہے۔ پھر ذوالقرنین کے سفر کی دوسری کڑی یعنی آذربائیجان کی طرف سفر کا اشارہ سورج کے طلوع ہونے سے دیا گیا، اور مختصراً اس علاقے یعنی آذربائیجان کی خصوصیات بھی بیان کی گئیں۔ لیکن اس بار اس آیت کے ذریعے صرف اتنا ہی اشارہ دیا گیا ہے کہ سمت اور علاقہ تبدیل ہو گیا ہے، لیکن سمت کا کوئی واضح اشارہ آنے والی آیات میں موجود نہیں۔ ایسا کیوں ہے، اس پر ہم غور کریں گے۔ جیسا کہ ہم جان چکے ہیں کہ ذوالقرنین اپنے سفر کی دوسری کڑی میں آذربائیجان کے علاقے تک پہنچ جاتے ہیں، تو اگر اس جگہ پر غور کیا جائے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آذربائیجان کے مغرب کی طرف بحر خضر ہے اور مشرق کی طرف آرمینیا کا علاقہ ہے جو ذوالقرنین کی سلطنت کا حصہ ہے، اور جنوب کی طرف فارس کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے جو پہلے سے ہی ذوالقرنین کی سلطنت کا حصہ ہے۔ تو ظاہر ہے یہ وہ علاقے نہیں، کیونکہ یہ تمام علاقے پہلے سے ہی ذوالقرنین کے قبضے میں تھے۔ تو آگے بڑھنے کے لیے صرف ایک سمت ہی رہ جاتی ہے جو کہ شمال ہے، اور تاریخی حوالوں کے مطابق ذوالقرنین کی سلطنت کا آخری حصہ بھی یہی بنتا ہے، جو کہ سکندر اعظم کے دور تک فارس کے قبضے میں رہا۔ آذربائیجان کے شمال میں موجودہ دور داغستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، اور اسی جگہ ایک شہر بھی موجود ہے جس کا نام دربند ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں ذوالقرنین پہنچے۔ یہ نام فارسی زبان سے لیا گیا ہے، اور اگر اس نام کے لفظی معنی پر غور کریں تو اس نام کے 2 حصے ہیں، در یعنی کہ دروازہ، اور بند یعنی دروازہ یا راہ بند ہونے کی نشاندہی ہے۔ اس جگہ کے مغرب کی طرف کوہکاف کا پہاڑی سلسلہ ہے، اور مشرق کی جانب بحر خضر واقع ہے۔ درمیان میں قریب 3 کلومیٹر کا میدانی راستہ ہے جو کہ اسٹریٹجک گزرگاہ بھی ہے، جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہاں سے کوئی بھی حملہ آور بآسانی اپنی فوج کو ساز و سامان کے ساتھ گزار سکتا ہے، یا پھر کسی بھی حملہ آور فوج کا رستہ بھی روکا جا سکتا ہے، جیسا کہ ذوالقرنین نے کیا۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو روکا اور وہ بند بنایا، جس کا ذکر قرآن میں ہے، اور قرآن میں بھی اس سد کے لیے جو ذوالقرنین نے تعمیر کی، بند کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو کہ حیرت انگیز طور پہ اس علاقے کے نام کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، یعنی دربند۔ اب ہم جانیں گے ذوالقرنین کے دربند پہنچنے کے بعد کے حالات اور واقعات، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 93۔ یہاں تک کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا، ان کے پاس اس نے ایک ایسی قوم کو پایا جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ آیت نمبر 93 میں جس قوم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ ذوالقرنین کو دربند کے علاقے میں ملی، اور جیسا کہ آیت نمبر 93 سے صاف ظاہر ہے کہ ذوالقرنین اس علاقے اور اس کے لوگوں سے واقف نہ تھے، اس لیے وہ ذوالقرنین کی بات سمجھنے کے قابل نہ تھے۔ اس کے علاوہ اس آیت میں ایک اور بات کا بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ یہ قوم کہاں آباد تھی۔ آیت نمبر 93 میں بتایا گیا کہ ذوالقرنین کو یہ قوم 2 پہاڑوں کے درمیان ملی۔ اکثر لوگ اس جگہ کا سن کر یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید ان 2 پہاڑوں کے درمیان سے گزرنے کے بعد آگے کوئی وادی آتی ہو جہاں یاجوج ماجوج بستے تھے، اور ذوالقرنین نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان بغیر کوئی اضافی تعمیرات کے لوہے اور تانبے کو پگھلا کر دیوار بنا ڈالی۔ حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں، جیسا کہ آیت نمبر 93 سے صاف ظاہر ہے کہ ذوالقرنین کو جو قوم ملی وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان آباد تھی۔ وہ لوگ اس لیے یہاں آباد تھے کیونکہ یہ جگہ زمین کی سطح سے کچھ اونچائی پر واقع ہے اور ایک پہاڑی ٹیلہ ہے، اور ذوالقرنین کے دور میں یہ لوگ
उसी पहाड़ी टीले पर आबाद थे, क्योंकि दिफाई नुक्ता नज़र से भी किसी से मुकाबला करते वक्त ऊंचाई की जगह हमेशा फ़ायदेमंद साबित होती है और दिफा करने में भी मदद मिलती है। अगर आज के दौर में देखा जाए तो इस जगह आज भी एक किला मौजूद है, और ये वही किला है जो ज़ुल्करनैन ने उस कौम के लिए बनाया था, जिसकी हम अगली आयात में वजाहत करेंगे। और उससे कबल भी ये जगह इस इलाके के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल रही होगी। इसी वजह से इसका जिक्र कुरान में भी किया गया। सूरह कहफ आयत नंबर 94। उन्होंने कहा, ए ज़ुल्करनैन, याजूज माजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतज़ाम कर दें कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। एक बात जो काबिल गौर है कि आयत नंबर 93 में ये बताया गया कि ज़ुल्करनैन ने दरबंद के इलाके में एक ऐसी कौम को पाया जो बात समझने के करीब भी न थे, लेकिन आयत नंबर 94 में ये साफ पता चल रहा है कि वही कौम ज़ुल्करनैन से अपना मसला बयान कर रही है। जैसा कि हम पहले ही बयान कर चुके हैं कि ज़ुल्करनैन अपनी सल्तनत में रहने वालों की सकाफ़ती इक़दार का हमेशा ख्याल रखते थे, और वो जब भी कोई कानून जारी करते तो अपनी सल्तनत में तमाम बोले जाने वाली ज़बानों में उसका तर्जुमा करके बांट दिया करते थे, जैसा कि उन्होंने बाबुल के सिलेंडर के साथ किया। इस काम को सरअंजाम देने के लिए इनके साथ तर्जुमान हमेशा मौजूद रहते। तो जैसा कि हम पहले ही बयान कर चुके हैं कि ऐन मुमकिन है कि ज़ुल्करनैन को दरबंद की खबर बाकू या आज़रबाईजान के इलाके से मिली। इसी तरह वहाँ से यकीनन उन्हें कुछ ऐसे लोग भी मिल गए होंगे जो दरबंद के लोगों की ज़ुबान जानते हों, क्योंकि इन दोनों इलाकों में बहुत कम फासला है और दोनों बहर खिज़र पर वाक़या हैं, तो यकीनन ये आपस में तिजारत भी किया करते होंगे और इन दोनों कौमों की एक दूसरे की ज़ुबानों के साथ कुछ हद तक वाकफियत भी रही होगी। आयत नंबर 94 में बताया जा रहा है कि दरबंद के लोगों ने ज़ुल्करनैन से याजूज माजूज का तस्करा किया। अक्सर लोगों का ये गलत गुमान है कि याजूज माजूज शायद कोई ऐसी मखलूक है जो इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और ये गुमान सिर्फ कुरान पर गौर व फिक्र और हदीस का मुताला ना करने का नतीजा है कि कुर्ब क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक निशानी से अक्सर लोग बिल्कुल बेखबर हैं। अहदीस में याजूज माजूज के मुतालिक बड़ी तफसील और वजाहत मौजूद है, और ना सिर्फ इनके इंसान होने का जिक्र मौजूद है बल्कि इनकी नस्ल के बारे में भी वजाहत पाई जाती है। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़िक़ा अलैह हदीस, जिसके रावी अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं, जिसका मफ़हूम है कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हाना ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि अपनी औलाद में से जन्नती अलग कर दो और जहन्नमी अलग, तो हर 1000 में से एक जन्नती और 999 जहन्नमी होंगे, और वो जहन्नमी याजूज माजूज में से होंगे। और एक और हदीस से यह भी मालूम होता है कि ये कौम तुर्क नस्ल के ज़्यादा करीब हैं। मज़कूरा हदीस से ये तो मालूम हो जाता है कि याजूज माजूज बनी आदम में से हैं, लेकिन कुछ और सवाल ज़रूर खड़े हो जाते हैं, जैसा कि बनी आदम की इतनी कसीर तादाद भला कैसे याजूज माजूज की सफ़ों में शामिल होगी। और ये सवाल बहुत अहमियत का हामिल है, जिसके जवाब पर हम जल्द गौर करेंगे। लेकिन फिल वक्त ये जानने की ज़रूरत है कि कुर्रे अर्ज़ पर याजूज माजूज की कौम का ज़हूर कैसे हुआ। कुरान और हदीस की तालीमात के मुताबिक आज तक के जितने भी इंसान हैं वो तमाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों में से हैं, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके 3 बेटों के अलावा तमाम बनी आदम को उस दौर में अल्लाह सुब्हाना ताला ने तूफ़ान नूह में हलाक कर दिया था। और तब से लेकर आज तक जितने भी इंसान कुर्रा अर्ज़ पे आए वो तमाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, हाम, शाम और याफिस। हाम से अफ्रीकी ममालिक के लोग या स्याफ़ाम कौमें, शाम से अरब और यहूद, और याफिस से तुर्क या यूरोपी यानी सफ़ेद फाम कौमें आगे बढ़ीं। और याजूज माजूज की कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की नस्ल में से हैं, जिसका मतलब हुआ कि याजूज माजूज की कौम सफ़ेद फाम कौम है। इनका जिक्र आसमानी किताबों में भी मिलता है, जैसे कि कुरान और बाइबल, और हदीस के मुताबिक इनके खरूज को क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक बताया गया है। इसके अलावा तारीख़ी हवालों में भी इनका जिक्र मौजूद है, जैसा कि हेरोडेटस ने इस कौम के बारे में तफसील से लिखा है। हेरोडेटस ज़ेनाफ़ोन का शागिर्द था, और हेरोडेटस को मगरबी ममालिक में बाबाए तारीख़ भी कहा जाता है,
यूनानी याजूज माजूज की कौम को स्किथियंस और एशकेनाज के नाम से भी जानते थे। एशकेनाज माजूज का भांजा था और इसे स्किथियन कौम के बाप के तौर पे भी जाना जाता है। असीरी तारीखी शवाहिद में एशकेनाज या इस्कोज़ई का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है और बताया गया है कि 780 कबल मसीह में ऐसे लोग यानी कोहकाफ की पहाड़ी सिलसिलों की तरफ से आते और जनूब पर हमला आवर हो जाते। ये वाक़यात ज़ुल्करनैन की पैदाइश से 200 साल कबल के हैं। इसके अलावा हेरोडेटस ने भी बताया कि ये कौम कोकाफ और बहर खिज़र के शुमाल में बड़ी तादाद में आबाद थे और वहाँ इन लोगों का कब्ज़ा था और हर राह गुज़र और ताजर से ये लोग टैक्स भी वसूल किया करते थे। इसके अलावा ये कौम अपने आप को खेज़ार या कौम खिज़र भी कहते थे। इसी वजह से कैस्पियन सी को बहर खिज़र के नाम से भी जाना जाता है, जो इस कौम के नाम पर रखा गया है, जिससे इस इलाके में इस कौम के असर व रसूख की निशानदही भी होती है। जो इलाके इस कौम के कब्ज़े में बताए गए हैं वो मगरबी रूस और यूक्रेन से लेकर मौजूदा दौर के जर्मनी तक हैं, जो जाहिर है काफ़ी वसी इलाका बन जाता है। इस कौम के तमाम नाम जो अब तक बयान किए जा चुके हैं निहायत अहमियत के हामिल हैं और आगे जाकर याजूज माजूज के फितने को समझने में बहुत मददगार साबित होंगे। सूरह कहफ आयत नंबर 94 में बताया गया कि दरबंद के लोगों ने ज़ुल्करनैन से कहा कि याजूज माजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं। याजूज माजूज की कौम का यही तरीक़ाकार था कि वो गिरदो नवा के इलाकों की कमज़ोर कौमों पर बग़ैर किसी वजह के हमला आवर हो जाते और वहाँ लूट मार और कत्ल गारत करते, और जो भी लोग बच जाते उन लोगों को पकड़कर ग़ुलाम बना लिया जाता, फिर या उन लोगों को अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता या फिर ग़ुलामी में बेच दिया जाता। जो भी काफ़िले इन इलाकों से गुजरते, मुआहदा होने की सूरत में ये उन काफ़िलों से भारी टैक्स वसूल किया करते और इसके अलावा जो टैक्स ना देता उस पर हमला आवर हो जाते। इसी जुल्म सितम की वजह से दरबंद के लोग भी याजूज माजूज की कौम से तंग थे। इन्हीं वजूहात की बिना पर दरबंद के लोगों ने ज़ुल्करनैन से मदद मांगी, जैसे कि आयत नंबर 94 में साफ लिखा है, क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतज़ाम कर दें कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। एक बात जो आयत के इस हिस्से में काबिल गौर है वो ये कि दरबंद के लोगों ने ज़ुल्करनैन से गुजारिश की कि वो इनके और याजूज माजूज के दरमियान एक दीवार बना दें। मतलब दरबंद के लोगों को ये मालूम था कि याजूज माजूज के हमलों से बचने के लिए उनको क्या दरकार है, यानी कि एक दीवार। एक और बात जो आयत नंबर 94 में बताई गई कि दरबंद के लोग ज़ुल्करनैन को दीवार बनाने के लिए मालो मता देने को भी तैयार थे और दरबंद के लोगों के पास अफरादी कुव्वत भी मौजूद थी, जैसा कि अगली आयात में इशारा किया गया है। तो फिर क्या वजह है कि ये काम खुद करने के बजाय इन लोगों ने ज़ुल्करनैन से मदद मांगी। उस दौर में इस इलाके के लोग अपनी तामीरात लकड़ी से किया करते थे, जिसके बरअक्स फारिस के लोग अपनी तामीरात पत्थर और ईंटों से किया करते थे। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि ज़ुल्करनैन परसेपोलिस जैसे शहर के बानी थे, जो कि न सिर्फ दुनिया का अमीर तरीन शहर था बल्कि तामीराती महारत का शाहकार भी था। और शायद यही वजह है कि दरबंद के लोगों ने ज़ुल्करनैन के सामने ये इल्तिजा रखी कि वो उनके लिए एक दीवार बना दें, क्योंकि जाहिर है कि दरबंद के लोगों ने उस पहाड़ी टीले पर अपने लिए जो भी तामीरात की थी उसमें लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था, और जाहिर है कि पत्थर और ईंट की तामीरात निस्बतन लकड़ी के ज़्यादा मजबूत होती है और दिफाई नुक्ते नज़र से भी ज़्यादा कारआमद है, क्योंकि ना इसे आसानी से आग लगाई जा सकती है और ना ही ऐसी मजबूत दीवार को तोड़ना आसान होता है। यही वजह है कि दरबंद के लोगों ने ज़ुल्करनैन को दीवार बनाने का कहा। तो हम अब जानेंगे कि ज़ुल्करनैन ने दरबंद के लोगों की मदद आखिर कैसे की और बंद तामीर करने के दौरान और उसके बाद भी याजूज माजूज के हमलों को कैसे रोका और उनका मुहासबा कैसे किया।